so I have set the intention and I have asked what we need to know about what happened between the couple. Okay, so it's not that we are going to get to know anything. This is just what Durga is willing to tell us. Okay, because it is something between a wife and a husband. But yes, it has come into the public domain, so we, and especially when people are telling us that this is the one side of the story, that is one side of the story, we don't know who is right, who is wrong. Is there a women card being played? Is there a victim card being played by somebody else? What is it? So we just want to be clear on that. So that is the whole intention of doing this reading, and not to peep in anybody's life. So here Maa Durga, we have asked what happened between both the wife and the husband. Maa Durga को जो भी लगता है कि we should know, we will get to know. Okay, so here is it. Anything you want us to tell about what happened between the wife-husband, Karan Mehra, and his wife, Nisha Rawal? Anything you want us to tell? Okay. So here is the thing. What happened between them? There is a death of something. This could be the death of the relationship, which we know, and here is the justice. Okay. तो किसी चीज़ की डेथ हुई है और लोगों को जस्टिस चाहिए है. Okay. Oh wow. You see how Durga talks. Alright, so there is a conscious level में क्या हुआ है कि उनकी relationship बिल्कुल टूट गई है. This is what it is, what has happened. Their relation has come to a death. उनकी relationship की death हो गई है. दिल टूट चुका है एक दूसरे से उनका, और यहाँ पे justice के लिए ही वो एक दूसरे से fight कर रहे हैं. काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, अगर उनकी देखो तो एक सोल मेट की रिलेशनशिप थी. वीडियो से पता चला है कि दे वर इनटू रिलेशनशिप फॉर लाइक 14 ईयर्स एंड देन 9 ईयर्स तो उनकी शादी को ही हो गए थे. तो डेफिनेटली एक सोलफुल रिलेशनशिप था जिसका एक दुखद एंड हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं. तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे हमें एक दूसरे को, जो अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि दीज टू कार्ड्स लाइक फेस ईच अदर. कहाँ पे तो वो इस तरह का कपल अब इस तरह के सिचुएशन में आ गया है, विच इज़ वेरी सैड गाइज. ओके, this is also very beautiful कि दुर्गा हमें इतनी beautiful cards दे रही है, and she is like telling us things, but this is also very important कि we didn't force anything on her. Okay, we just asked her whatever she wants to tell, she can tell us, and we were open to receiving, and this is what we are receiving. So that is what happens when you are open to receiving without judgments, without expectation. You get more than you would ever got. ठीक है? So this is all part of the spirituality. Alright, so आप देख सकते हो कि किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल जो सिचुएशन अनफोल्ड हुआ है हमारे सामने, उसको ही बिल्कुल एक व्याख्या करता हुआ, बहुत ही सटीक व्याख्या करता हुआ ये कार्ड्स आ रहा है हमें. वाओ. ओके, ऑलराइट. बैक ऑफ द डेक पे देखेंगे. डेफिनेटली एक बच्चे का एंगल यहाँ पे है, क्योंकि वो जो लेडी है अपने बच्चे के लिए काफ़ी फिक्रमंद है कि कहाँ पे क्या होगा. एंड यहाँ पे भी कुछ सही, दे आर ट्राइंग टू वर्क इट आउट, बट समथिंग इज़ नॉट रियली वर्किंग आउट बिटवीन देम, है ना. यही चीज़ हो रही है. यहाँ तक तो पता चली गया है हमें. यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कि ये जो बंदी है, शी इज़ ट्राइंग टू टेम द गाय. ओके, यहाँ पे देखिए, शी इज़ ट्राइंग टू टेम अ लायन, बिकॉज शी इज़ नॉट, काफ़ी स्ट्रेस भी है. डेफिनेटली the lady is definitely going through a lot of stress, ऐसा तो definitely लग रहा है. and she is trying to tame the guy as if कि, बट वो प्यार से ही कर रही है. यहाँ पे तो definitely एक टावर मोमेंट आ गया है उनके रिलेशनशिप का, which is like end of a relationship, and it's like, you know, a ugly episode is बाकी है यहाँ पे अभी. the whole breakdown of the whole thing. बच्चे को लेके काफ़ी यहाँ पे बातें हैं. इट्स द चाइल्ड इज़ अ मेजर कंसर्न यहाँ पे, जहाँ पे आप देखो तो एक अच्छी खासी जो हैप्पी लाइफ थी कपल की, वो उल्टी हो गई. मनी थिंग इज़ नॉट हैपनिंग हियर. ठीक है, मनी का ही मेन इशू चल रहा है यहाँ पे. ओके, लेट मी गिव मी अ मोमेंट.
यहाँ पे मैं देखूँगी व्हाट इज़ द इंटेंशन, क्योंकि अगर आप इंटेंशन देख लिए, पता चल जाए आपको किसी का, तो काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है हमें किसी के बारे में या फिर किसी की सिचुएशन में। तो हम देखेंगे माधुर के, अगर हमें कुछ इंटेंशन, व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ करण मेहरा टूवर्ड्स हिज वाइफ, चाहते क्या है वो अपनी वाइफ से। सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन, ऑलराइट। Karan Mehra wants to fix his wife. Oh my god, he wants to control the people as well. All right. Okay guys, तो हमें जो 2 कार्ड आया है यहाँ पे, क्या आया है, हमने पूछा कि इंटेंशन क्या है इस बंदे का अपनी वाइफ के लिए, तो हमें आया है सरेंडर योर आइडिया टू फिक्स समबडी। एंड अगर ये गलत होती तो ये भी कार्ड हमें आया है सरेंडर योर आइडिया टू कंट्रोल समबडी। तो डेफिनेटली लगता है कि एक आदमी दूसरे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज़ रियली सैड, दैट इज़ सो सैड। सो दिस गाय हैज़ सच अ गुड इमेज इन टीवी एंड दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये शेर है, यहाँ पे एक फेरोशियस एनिमल है, और यहाँ पे इसकी वाइफ जो है उसको बहुत प्यार से टेम करने का कोशिश कर रही है, समझाने का कोशिश कर रही है। एंड उसने शायद कुछ इस तरह का भी बात बोला था कि शी स्टार्टेड लॉट ऑफ वेंचर्स टू ब्रिंग बैक लव इन देयर लाइफ। शी स्टार्टेड अ व्हाट्सएप ग्रुप कॉल्ड Project Love, something like that, and then she was really working hard on making the relationship work. But यहाँ पे एक बिल्कुल ferocious lion है जो कि शायद टेम ही नहीं हो रहा है, because this lion is in his own element. He wants to control the other person, he wants to fix the other person. आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एक लेडी का बहुत ही gentle touch है, but this guy is trying to control the other person, which is really shocking considering the kind of image this person has. Because we have got both the cards ना, एक कार्ड आता तो गलत मान लेते थे, पर दोनों ही कार्ड वैसे आए हैं। All right, चलिए हम देख लेते हैं what is the intention of Madhurke. Please tell us what is the intention of his wife towards her husband. What is that we need to know? Surrender to passion, surrender to sleep. Okay. Get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people or activities that ignite your passion, need, and let it flow. Surrender to sleep and love. तो ऐसा लग रहा है कि उसका इंटेंशन अपने हस्बैंड की तरफ ऐसा कोई नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं आया है. शी इज़ नॉट ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ हिम और मैनिपुलेट हिम. ऐसा कुछ वो करना नहीं चाह रही है. वो उसको एक पैशन ही है. वो अपने हस्बैंड की तरफ एक पैशन ही फील करती है. शी मे बी लव्स हिम अ लॉट एंड शी इज़ रियली शैटर्ड विद द वे होल थिंग हैज़ हैपेंड. जस्ट इमेजिन, आप इतने लंबे रिलेशनशिप में हो, एक सोलफुल रिलेशनशिप में हो, और आप किसी और लड़की के कारण उसको छोड़ देते हो, तो शी विल फील द एंग्स्ट इनसाइड, राइट. लाइक शी पर्सन विल बी टोटली ब्रोकन, जैसा कि हमें यहाँ पे पता भी चलता है, ब्रोकन है बिल्कुल वो. तो उसको अपने हस्बैंड के लिए लव और प्यार ही है, और वो बहुत एक्चुअली इस बंदे ने उसको परेशान करके रख दिया है. ओके, वो बस लगता है उसको जैसे कि उसके तरफ से वो ऐसा लग रहा है कि वो सोचना नहीं चाहती है, वो बस बहुत थक गई है, एंड शी जस्ट वांट्स टू टेक रेस्ट एंड स्लीप. दिस इज़ हर इंटेंशन टूवर्ड्स दैट पर्सन, विच इज़ लाइक यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट इंटेंशन है, और यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट इंटेंशन है. अब मैं लेट्स सी. अब यहाँ पे जस्टिस की फाइट चल रही है, ऑल दैट एलिमनी थिंग एंड ऑल दैट. तो व्हाट इज़ द इंटेंशन, यहाँ पे भी देखो तो वही चीज़ बताया जा रहा है. ये सब कोर्ट केस हो चुका है, what is the intention of Karan Mehra towards his wife? Let's pull one more card. Let's get some more clarity. What is the intention of Karan Mehra towards his wife? Anything you want us to know? Learn from the past. Okay, he wants to learn from the past. What is the intention of his wife towards her husband? इसका एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से ये है कि
वो एक अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड। हर एक्सपेक्टेशन है कि जो भी उसका हस्बैंड है वो उसके लिए प्रोवाइड करे, वट एवर शी डिजर्व्स दिस पर्सन शुड प्रोवाइड, ओके, टेक केयर ऑफ हर होल थिंग एंड रादर प्रोवाइड वेरी अबंडेंटली, ठीक है। उसको शी थिंक्स दैट शी डिजर्व्स दिस एंड ऑल। यहाँ पे उसका इंटेंशन अगर देखिए उस लड़के का वाइफ की तरफ से क्या है, तो लर्न फ्रॉम द पास्ट। सो ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपनी वाइफ का ये चेहरा देखा नहीं होगा और ही इज़ जस्ट लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज़ अनफोल्डिंग इन अ न्यू वे एवरी डे। तो वो भी अपने पास से लर्न करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वाइफ का तो ये है कि शी एक्सपेक्ट्स हिम टू टेक केयर ऑफ द होल थिंग। यहाँ पे पैसे का बात है डेफिनेटली। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे मैं एक क्लैरिफायर निकाल के देखती हूँ कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। Anything, any clarifier for this, the strength card, anything? What happened between the two relationship? Okay, यहाँ पे emotional loss आ गया है। It's more like, you know, this lady tried to work out the relationship but उसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, she was only stressed and all that। ये बंदे ने नहीं बात मानी एंड एक इमोशनल लॉस ही उसको इस रिलेशनशिप से हुआ है। ओके, तो ये चीज़ है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बंदा ना ही इज़ प्लेइंग अ बिट मीन टू दिस लेडी। ही इज़ नॉट गिविंग हर एनी मनी और उसको उसने घर से बाहर निकाल दिया है, इस तरह का लग रहा है। ओके, मुझे तो यही वाइब्स आ रहा है कि दिस गाय इज़ बीइंग अ लिटिल मीन एंड दिस लेडी ऑफ कोर्स दे हैव स्पेंड सो मच ऑफ टाइम टुगेदर। शी एक्सपेक्ट्स कि दिस पर्सन प्रोवाइड्स फॉर हिम एंड दिस गाय इज़ लाइक कि वो बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहता है और उसने बहुत उसको बाहर भी निकाल दिया है, ऐसा देख रहे हो। एंड दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़। तो मुझे तो ऐसा नहीं, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बंदी नाटक कर रही है यार। मुझे तो क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी सही आई है। शी इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल इज समबडी हु इज़ वेरी होमली, वेरी काम, वेरी डोसाइल। घर मैंने कह बस समबडी हु रियली टेक्स केयर ऑफ अ फैमिली। हाँ, और यहाँ पे अपने बच्चे के लिए भी काफ़ी चिंतित है वो। एंड यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको घर से बाहर निकाल दिया है इसने। और एक बहुत यही लाउड आ रहा है रीडिंग कि दिस गाय डजंट वांट्स टू गिव हर एनी एलिमनी एंड ही इज़ बीइंग वेरी अनफेयर विथ हर रिगार्डिंग द होल मनी थिंग। एक तो आप उधर जाके इश्क लड़ाते हो एंड देन यू आर नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली, दिस इज़ नॉट डन। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें लड़की की कोई भी गलती आ रही है। दिस इज़ दिस गाय, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बहुत ही प्यार से वो उसको समझाने का कोशिश कर रही थी कि वो मान जाए, समझ जाए, ठीक है। बट दिस गाय इज़ लाइक कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है, वो उल्टा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कि कैसे उसने उसको बिल्कुल एक घर से बाहर ही निकाल दिया है। तो मनी का ही इज़ बीइंग वेरी माइजर इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। So that is what it is, guys. Do let me know what you feel about the reading. Thank you so much for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. And I will see you again. Till then, take care of yourself and bye.